Uh, I am Dr. Vijay Pratap Singh. Today I teach you the English legal language including general English. The paper is for the LLB 3 years course. It is basically only used in first semester. The students who are taking admission in first semester, they will read and write this paper, and this paper is especially for judiciary in prelims and mains exam. There are 5 units are important for LLB first semester, 3 years. There are 5 units. The units are first unit, second unit, third unit, fourth unit, fifth unit. There are 5 units. Today I taught you legal language including general English first. Legal language means English which is legally used in legal glossary and in dictionary in legal language. Not English. It is legal in word, legal in meaning, legal in used in phrasal, verb, adverb, noun, pronoun, adjective, adverb, conjunction, etc. Today I speak to say that unit first includes unit first. What are the things which we used in unit first? Unit first we used sentence. What are kinds of sentence? What is sentence? What are its importance? How the sentence is used? These things. Kinds of sentence, subject and predicate, parts of speech, gender, number, uses of articles, tenses and structural rules of translation. These things are in unit first. Sentence. Number 2. Kinds of sentence. Number 3. Subject and predicate.
predicate, subject and predicate. Number 4, parts of speech. Parts of speech. Next one is number 5, gender. Number articles, tenses and structural rules of translation. Tenses and structural rules of translation. Tenses and structural rules of translation. These things are used in unit first. We have to read it. Legal language including general English, LLB first semester, 3 years, unit first. Number 1 is sentence, वाक्य, kinds of sentence, वाक्य के प्रकार, subject and predicate, पढ़ना है subject और predicate को, parts of speech, how many kinds of parts of speech, gender, feminine and masculine gender, number पढ़ना है, articles, how many types of articles and what are its uses, how it is used in our general English in legal way, tenses and structural rules of translation. Unit first, today is the first day of my class of general English, and I first in my first class I told you what are the things which I have completed within my next classes day by day. Unit first of all, when I started my lecture, I have used, there are 5 units in general English. जनरल इंग्लिश में 5 यूनिट्स हैं, जिन्हें 5 यूनिट्स को आपको पूर्ण रूप से पढ़ना है और उनको पढ़ने के बाद ही आपको उनसे क्वेश्चंस आएंगे। अब देखिए, आपको आज मैं ये बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। 10 क्वेश्चन आपको आने हैं, 10 में 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। एक तरफ से 10 क्वेश्चन होंगे, कहीं किसी 5 का हल करें और नहीं तो ग्रुप वाइज क्वेश्चन होगा, हर ग्रुप से एक क्वेश्चन करें। एक जो पेपर पैटर्न है ये आपका रहेगा। और जनरल इंग्लिश आपको पढ़ना अति आवश्यक है, इसलिए इट इज यूज्ड इन लीगल वे इन योर जुडिशरी आल्सो, एपीओ आल्सो। पहले एपीओ और जुडिशरी में इसका कोई स्थान नहीं था, लेकिन आज एपीओ और जुडिशरी में इसका स्थान है। इसलिए जनरल इंग्लिश को आप अनदेखा न करें, इसको आप पूर्ण रूप से सीखने का प्रयास करें। अंग्रेजी कमज़ोर हो तो उसके 5 माध्यम हैं सीखने के, मैं आज आपको बताऊंगा। ऐसे 5 माध्यम हैं। आप शुरू से अगर एकदम अंग्रेजी नहीं आती है तो बता रहा हूँ, और अंग्रेजी कुछ कुछ आती है तो भी बता रहा हूँ, दोनों के लिए लागू होती है। आप आरंभिक दौर से अंग्रेजी के शब्दों को चुनिए, ABCD स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर सीख लीजिए, 1 to 100 सीख लीजिए, और उसके बाद ABCD के बाद वर्ड्स को कंबाइन करके लिखना सीख लीजिए।
ABCD पूरा हो जाने के बाद शब्दों को तोड़ तोड़ कर पढ़ना सीख लीजिए। धीरे धीरे अगर मेहनत करेंगे तो 2-4 महीने में, 2-3 महीने में अगर रोज जो 1 घंटे 2 घंटे आप प्रयास करेंगे तो ये चीज़ें आपके जहन में आ जाएगी। और एक चीज़ और है, थोड़ा सा समाचार पत्र न्यूज़ डेली जो आता है इंग्लिश में, उसको भी पढ़ने का प्रयास करें। न्यूज़ डेली में अगर कोई भी हेडलाइन आती है तो उस हेडलाइन को उठा लीजिए, पहले पृष्ठ का, उसको अपने कॉपी में लिख लीजिए और डिक्शनरी उठा लीजिए। डिक्शनरी उठाने के बाद उसकी मीनिंग आप खोज लीजिए। उस कॉपी को बना लीजिए इंग्लिश की कॉपी और लीगल कॉपी बनाइए और उसके मीनिंग लिखिए। जैसे अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आती है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस आते हैं, सुप्रीम कोर्ट की एनालिसिस आती है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं, आई थिंक दैट यू हैव नॉट ए पावर टू अंडरस्टैंड इट। योर एबिलिटी इज नॉट इन सच ए मैनर टू अंडरस्टैंड इट। यू हैव टू फर्स्ट रीड व्हाट द थिंग्स हैज बीन रिटन, in what form, in what sense, what the things tell, whether it is wrong or right. All these things are in a appropriate manner or in not in manner. First of all, you have to read. Then after sometimes, after read again and again, you have to understand how the sentence frame. फ्रेमिंग सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा, सेंटेंस की प्रक्रिया बताऊंगा, सारी चीज़ बताऊंगा। लेकिन आप अंग्रेजी की पुस्तक आर.एल. जैन की ले लीजिए, लीगल लैंग्वेज की किताब आर.एल. जैन की बुक है जो आपको बाजार में मिलेगी, आपको वहाँ से प्राप्त करना है। अब देखिए, जैसे सामान्य सा कोई वाक्य आप लिखते हैं और सामान्य सा वाक्य लिखने में उसमें आप ग्रामर नहीं देखते, लिख देते हैं, वो सही भी हो जाता है, बोलचाल की भाषा में सही होता है, लेकिन कभी कभी वह गलत भी होता है, सुनने वाला उसको ध्यान नहीं देता है। तो कैसे आपको देखना है कि मैं कौन सी इंग्लिश गलत बोल रहा हूँ, कौन सी इंग्लिश सही बोल रहा हूँ। जैसे कोई आपसे पूछे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो then you can say, or you can tell, my name is this and this. What is this? My name is this and this. It means मेरा नाम फला है। If anybody can ask what is your address, it is a primary source of English, how to give your address in front of any interview committee or anybody who is speaking in English in front of you. First of all, you have to think, there are 3 and 4, 5 things. First, concentrate yourself on the words, whether which words you are used, it is right or wrong. The words which you are used, right or wrong. Always use the right words, small words, a word which is you know, not you are known by that word, otherwise you cannot use first. Then after, if you know the words, then you have to use that word, otherwise don't use. Don't make a fool anybody. लीगल लैंग्वेज लीगली यह सब पर लागू होता है। मैंने आपसे बता दिया कि 10 क्वेश्चन आएंगे और इसमें ग्रामर, प्रेसी, ऐसे, लेटर, और उसके बाद आपको आना है कुछ क्वेश्चंस ग्रामर के रहेंगे, लेटर के रहेंगे, प्रेसी रहेगी, राइटिंग रहेगी और ट्रांसलेशन रहता है। ट्रांसलेशन रहता है जो उसको हिंदी से इंग्लिश करना होता है, इंग्लिश से हिंदी करना होता है। लेकिन अगर किसी भी ट्रांसलेशन को आप करेंगे तो और में एक क्वेश्चन भी उसके साथ रहता है। लेकिन पेपर पैटर्न जो बनता है, उस पेपर पैटर्न बनने के 2 तरीके होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेपर सेटर
can set the paper. Number one is you have to choose any five. Number second is in all groups you have to choose any five. जो ग्रुप्स दिए जाएंगे, दो दो ग्रुप के क्वेश्चन होंगे, उसमें एक एक क्वेश्चन किन्हीं से एक एक को आपको किंचित भाव से चॉइस करना है। इसीलिए अंग्रेजी के माध्यम से आप पहले क्लास में मैं आपको यह संदेश देना चाहता हूँ, इट इज़ इंग्लिश लॉ, इट इज़ इंग्लिश विच इज़ नेशनल लैंग्वेज एज आल्सो इंटरनेशनल लैंग्वेज। यू हैव टू रीड एंड राइट, always keep in your mind, without English you cannot succeed in your life. Otherwise, if you are a good lawyer or a good achiever of, or you get good success in your life in English, not English but in law. Law is basic structure of English. कभी भी लॉ जो है हिंदी में नहीं आया था, इंग्लिश में ही आया था। इसीलिए जो भी आएंगे आप देखेंगे हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं, नेशनल लॉ स्कूल्स, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटियाँ, और जो JNU, BHU और दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, जो बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटियाज हैं, उसमें इंग्लिश में जो ही लॉ को पढ़ाया जाता है। हिंदी प्रदेशों में इसका हिंदी का प्रयोग होता है, साउथ इंडिया में इंग्लिश में ही लॉ पढ़ाया जाता है, बंगाल में इंग्लिश में लॉ पढ़ाया जाता है। तो इसका मतलब नहीं है कि हिंदी से ही काम चलेगा। आप इंग्लिश में लॉ में आए हैं तो ध्येय बनाइए कि सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करें। लीगल लैंग्वेज तो है ही है। टुडे आई हैव वन थिंग टोल्ड यू, इफ़ यू नो इंग्लिश you can know the law. If you don't know the English, you don't know the law. That is my first and last word. Thank you very much. Goodbye. Sorry.